All welcome to the Future Doctor Academy. So today we are going to start chapter first, solid state of chemistry, class 12. So what do you mean by matter? Matter means anything which have mass and occupy some space. So as we have read in our previous class, matter are of three types, mainly three types. First, solid, liquid and gas. So liquid and gas is together called fluid because they have ability to flow, but solid cannot flow. It is rigid due to its high intermolecular force of attraction. Solid are tightly packed. If we take example of a box, so solid are tightly packed, they don't have any space between them. But if we take example of liquid or gas, so liquid are loosely packed, but if we take example of gas are so far apart from each of them. So you can see the difference between solid and liquid and gas from the following diagrams. So here solid is tightly packed, have high intermolecular space as compared liquid and gas. Okay, let's see the properties of solid. Properties of solid. They have definite mass, volume and shape. For example, if we take a bottle and we put some water, so as per the shape of bottle, liquid means water will change its shape and size. But if we take a beaker and we put some stone there, so the solid did not change its shape because it have definite shape, means it cannot change its shape with respect to any environment. Okay, then second property become it have high intermolecular space. Sorry, it have high intermolecular force of attraction, and it have low or short intermolecular space. Then we come in third property, it is incomparable
means it cannot compress. Okay, let's take example. If I give you a stone, can you compress it? Means I give you that much big a stone, means इतना बड़ा एक स्टोन दिया आपको, तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. पर इफ़ आई गिव यू एनी फ्लूइड मीन्स वाटर दे दिए, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं. सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. देयर constituent particles means atom, ions or molecules have fixed position and can only oscillate about their mean position. So कहना क्या चाहते हैं, मीन्स एक बॉक्स है, मीन्स एक सॉलिड है, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, जो एटम रहते हैं जिससे ये बना हुआ है, इससे ये बना हुआ है, वो फिक्स रहते हैं. मीन्स ये अपने प्लेस में फिक्स्ड है. मीन्स ये अपना प्लेस छोड़ के यहाँ नहीं चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा. सो दे हैव फिक्स्ड पोजीशन. बट इफ़ वी सी इन एयर, सो एयर मीन्स गैस एंड लिक्विड. सो लिक्विड में जो पार्टिकल रहते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं रहते, मीन्स एक फिक्स मैनर में अरेंज नहीं रहते. तो क्या इनके पास बहुत सारी स्पेस है. सो यहाँ ये मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है. So they can move. Air can only easily move, but solid cannot move. So its fifth properties, their constituent particles, atom, ions and molecules have fixed position and can only oscillate about their mean position. Means oscillate का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो इधर उधर मूव तो नहीं कर सकते, पर जो अपने एक जो मीन पोजीशन है यहाँ, ये इसी पे ऑक्सीलेट. मीन्स जैसे कि हम वेव्स पढ़ते हैं, तो वेव्स में क्या रहता है, पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन पे ऐसे ऑक्सीलेट करता है. मीन्स यहाँ पे ये मूव कर रहा है पर ऐसे सामने मूव नहीं करता. ठीक, अपने पार्टिकल अपने पोजीशन में अप डाउन मूव करता है, ऑक्सीलेट करता है. ओके, सो वी अंडरस्टैंड दैट सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particle like atom, ions, molecules are in fixed position and oscillate in their mean position. Okay, so let's see the types of solid. Solids are of two type, crystalline and amorphous. So mainly हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज number of small crystals and each crystals have definite characteristic geometrical शेप. ओके, मीन्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं वो बहुत सारे स्मॉल क्रिस्टल सॉलिड से बने रहते हैं, जो कि उनका एक पर्टिकुलर डेफिनाइट शेप रहता है. ठीक, मीन्स ऐसे ही नहीं कि कुछ भी शेप में टेढ़ा पेचका कुछ भी, मीन्स ऐसे नहीं रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं. द अरेंजमेंट
of constituent particle in a crystalline solid is in ordered way and are in repetitive in 3 dimension. ओके, इसमें मतलब क्या है, जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे आर्मी हो गई, ठीक, आर्मी में जब परेड कराते हैं, जो एनसीसी देखते हैं उसमें भी, तो उसमें क्या है, जो सारे कैंडिडेट रहते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में रहते हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन में, ऑर्डर्ड में, एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव वे में रहते हैं, मीन्स एक के बाद एक ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, जैसे कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल जो रहते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, तो दे आर ऑल्सो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रिपीटेटिव इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में एक दूसरे को रिपीट करते हैं। एंड ऑल्सो क्रिस्टलाइन solids are known as true solids. They have sharp melting point, means they are known as true solid and they have sharp melting point, means अब ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई एक मटेरियल है, ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, सो ये 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो ही जाएगा, ठीक। मीन्स एक होता है शार्प और रेंज। तो शार्प क्या मीन्स, शार्प उसी मतलब एक पॉइंट में जो बोल दिया है, मतलब से 100 बोल दिया है तो 100 में वो मेल्ट हो ही जाएगा। पर रेंज क्या होता है, वो रेंज एक शार्प नहीं होता, मीन्स वो 100 बोला है तो 100 टू क्या पता वो 110 हो, तो इस बीच में मीन्स किसी एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, उसको रेंज मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो एक फिक्स्ड नंबर मीन्स जो एक फिक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसमें मेल्ट हो, उसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स सम ऑफ देयर physical properties like refractive index or electrical resistance shows different values when measured along different directions। मीन्स क्या बोल रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं तो उनके जो पार्टिकल अरेंज रहते हैं, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड है, मीन्स ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, फिर ये टाइप, फिर बी टाइप, इस वे में अरेंज्ड है। पर अगर आप इस डायरेक्शन से देखो तो इफ़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पासेस थ्रू इट लाइक दैट, सो इट चेंजेस, मीन्स एक यहाँ आ रहा है तो दूसरा यहाँ आ रहा है, ओके, सो और इधर से जाओ तो एक यहाँ जाके यहाँ जा रहा है, इससे मीन्स
जो डिफरेंट डायरेक्शंस रहते हैं, तो इनमें इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, वो वेरी करते हैं. दैट इज़ नोन एज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. Look at here, this is the figure of NCERT book. So here you can see the particles are arranged in a manner that this is A type, B type, A type, B type. Okay, but if ray A to B crosses, so you can look that only A type of particles are shown here. But if you go in different directions, means you are going here vertically, if you change your angle, if you go in different directions, you can see that the arrangements is different. Here big ball is here, then small big, small big, so different arrangement can be seen. So this property is known as anisotropy in crystalline due to a different arrangement of particles along different directions. मीन्स जो इनके पार्टिकल होते हैं वो एक डायरेक्शन में तो सिमिलर रहते हैं, पर जब दूसरे डायरेक्शन में जब आ जाओ आप, मीन्स इस डायरेक्शन में सिमिलर है पर इस डायरेक्शन में जाओ तो डिफरेंट हो जाते हैं. दैट इज़ नोन एज एनाइसोट्रॉपी. नाउ लेट्स चेक व्हाट इज़ एमॉर्फस सॉलिड. जो ये वर्ड है एमॉर्फस, वो एक ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है. जितने भी साइंस के जो वर्ड रहते हैं वो मैक्सिमम ग्रीक या फिर लैटिन से डिराइव होते हैं. तो ये वर्ड है वो ग्रीक से डिराइव हुआ है. एमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है? नो फॉर्म, मीन्स इसका कोई फॉर्म नहीं होता. ठीक, इसमें okay, let's check its definition. The arrangement of constituent particle of amorphous solid are short in order. मीन्स देखो, जैसे कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, पर जो एमॉर्फस सॉलिड हो गया उसमें शॉर्ट रहते हैं. मीन्स जैसे कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में इतने पार्टिकल्स हैं तो एमॉर्फस में सिर्फ इतने पार्टिकल रहेंगे जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मैनर को, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे. सो इन दिस अरेंजमेंट a regular and periodic repeating pattern is observed only for short distance. इसमें भी एक रेगुलर, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए होता है. ओके, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज मेल्टिंग पॉइंट. मीन्स इसका एक कोई फिक्स्ड, जैसे कि 100 डिग्री, इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे एक्स वाई कुछ नहीं होता. मीन्स इसका एक रेंज होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस to 250 डिग्री सेल्सियस. मीन्स एक रेंज में रहता है कि जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस आया तो ये मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्लीट मेल्ट कब होगा, ये 110 में मेल्ट होगा. ओके, सो दिस इज़ नोन एज रेंज मेल्टिंग पॉइंट, एंड हियर वी स्टडीड व्हाट इज़ एमॉर्फस सॉलिड. सो लेट्स चेक अ डीप comparison between crystalline and amorphous solid. Crystalline
amorphous. Okay, shape, let's check shape. So in crystalline solid it have definite shape, but in amorphous it has irregular shape. And when we come in melting point, it has sharp melting point, but it amorphous solid had range melting point. Then cleavage point. Okay, means क्लीवरेज मतलब तो ब्रेक डाउन होगा उसका. सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है इसको हम लोग एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं. मीन्स जैसे कि डक्टिलिटी होता है जो इट कैन ब्रेक इनटू पाइप्स पीसेस लाइक दैट. इट कैन ब्रेक but it cannot because it do not have regular shape. So if we try to break into a particular shape, so it will be converted, but it cannot be that much big. Means जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पेंसिल हुआ, ठीक. अभी एक पेंसिल इतना बड़ा पेंसिल है, ठीक. तो मान लीजिए ये इतना बड़ा पेंसिल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड से बना है, पर अगर आप अमरफस सॉलिड से बनाना चाहो इस पेंसिल को तो ये इतना बड़ा बन ही नहीं सकता. मीन्स इतना इसका बड़ा उसका जो रेंज होता है, जो मीन्स एक पर्टिकुलर रेगुलर मैनर को फॉलो करने का जो रेंज होता है, डिस्टेंस होता है, वो इतना मतलब दैट दे डू नॉट हैव दैट मच बिग रेंज. दे ओनली हैव शॉर्ट रेंज. दे चेंज देयर अरेंजमेंट टाइप इन शॉर्ट पीरियड्स. ओके, let's come in heat of fusion. means ये इनकी हीट एंथैल्पी कितनी होती है, ठीक है. सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है दे हैव डेफिनाइट हीट एंथैल्पी बट एमरफस डू नॉट. देन एनिसोट्रॉपी. सो एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है पर एमरफस में नहीं होता है. एमरफस हैव isotropy. Means they do not change their physical property along different directions. Okay, means एमरफस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन से, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सो हर डायरेक्शन में सेम रहेगा बिकॉज जो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो खुद अनअरेंज रहते हैं. मीन्स एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं रहते हैं. सो इट अलाउज टू पास दैट फ्रीली. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज ट्रू सॉलिड बट एमरफस सॉलिड इज नोन एज pseudo solid or false solid, or we can say super cooled fluids. मीन्स अगर आप किसी फ्लूइड को एकदम सुपर कूल्ड कर दिए कि वो एक सॉलिड की शेप में आ गया, सो यू कैन से दैट इज ऑल्सो एमरफस सॉलिड. ओके, एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक. ओके, एंड amorphous solid ग्लास, रबर, प्लास्टिक. जैसे कि प्लास्टिक आप जैसे बर्न करना चाहो तो वो बर्न नहीं होता. मीन्स वो पिघलता है पूरा, फिर आखिरी में पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, फिर लास्ट में एकदम ही लास्ट में वो बर्न होता है. सो इट हैव रेंज मेल्टिंग पॉइंट. बट इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक sodium chloride, quartz, so try to burn sodium chloride, it will melt at a particular fixed amount. Means they will not show any range. Means वो पहले पिघलेंगे नहीं, वो डायरेक्ट मीन्स मतलब वो डायरेक्ट ही मेल्ट हो जाएंगे. जैसे कि प्लास्टिक रहता है, वो जब मेल्ट होना जाता है तो वो एक चिपचिपा मीन्स एक रबरी सब्सटेंस बनाता है, पर ऐसा NaCl नहीं करेगा बिकॉज दैट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड amorphous solid, there is a small type called polycrystalline solid. Okay, polycrystalline solid beside from
crystalline and amorphous solid. There are some solids which appears like amorphous but they are microcrystalline structure, मीन्स वो amorphous की तरह दिखेंगे, मीन्स look like amorphous solid, but they have polycrystalline constituent particles. Okay.